Hello, dear students. Today we will discuss about the inverse trigonometry function. तो स्टूडेंट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम अगर डिस्कस करें तो इससे पहले सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अगर फंक्शंस का इनवर्स आप डिस्क्राइब करते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब फंक्शन क्या हो 1 on 2 हो, जिसको आप अदर वर्ड्स में कह सकते हो बाइजेक्टिव. ए फंक्शन इट्स इनवर्स इज डिस्क्राइब व्हेन द फंक्शन इज 1 and on 2, राइट, और वी कैन से बाइजेक्टिव. अब अगर हम साइन एक्स को डिस्क्राइब करें तो आप सब जानते हो कि साइन एक्स इज द एफ एक्स, राइट, एफ एक्स इज द साइन एक्स. तो इसके एफ सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम कैपिटल R to -1 to 1 वेयर एफ एक्स इज साइन एक्स, राइट. ये फंक्शन था अपना कि साइन एक्स एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री. देयर आर 6 फंक्शन इन विच आउट ऑफ दिस 6 one of this is to be sin x and its domain is capital R, meaning the value of x that can be taken into the capital R, where the values of the y or we can say the values of the fx that we will get into the -1 to 1. तो ये तो क्लियर हो गया कि साइन एक्स में अगर आप x जो कि साइन का एंगल है इसकी डिफरेंट वैल्यूज इस कैपिटल R इसके डोमेन से प्लेस करते हो तो जो आपको y की वैल्यूज मिलती है वो इसके को डोमेन में मिलती है, दैट इज बिटवीन -1 to 1, राइट. अब यहाँ पर आप देखते हैं साइन एक्स गिव्स द डिफरेंट एंगल्स एंड ऑन डिफरेंट एंगल ऑफ द एक्स वी विल गेटिंग द y वैल्यू, दैट इज समटाइम्स whenever we place the pi by 2. Suppose the graph of sin x, everybody is to be know about the graph of sin x, that is the x axis, that is origin, that is y axis, right. Now we will describe this is the angle pi, this is 2 pi. On similar way it will proceed, again there will minus pi, again there will be -2 pi, same will be proceed on the both the axis. The graph is to be look like that, right. Again it will move like that. Similarly it follows in the negative axis, it moves in the same manner like that. And this value, that is the peak of the graph. Suppose the graph and downside so like that. These values of the +1, this is -1, right. तो इस कर्वेचर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस कर्व, इस कर्व को देखने पे आपको क्या पता लग रहा है कि साइन एक्स on different values of x we are getting the value of y that is between -1 to 1, right. That is to be described here. The domain of the function is capital R where codomain that between -1 to 1, right. अब क्या एक बात आ गई, हमने कहा कि अगर इस फंक्शन का इनवर्स, तो इनवर्स क्या होगा, whenever a function is f that is defined from capital R to -1 to 1. suppose that, अब यहाँ हम कैपिटल R से नहीं लेते हैं, एक फंक्शन f है that is described from A to B and another function which is described from B to A, then we will say that G is inverse of f. G is inverse of f, or we can say f inverse. If a function that is such that defined from capital A to capital B, f एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, A से B, और g एक फंक्शन जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, B to A. तो g is the inverse of A, inverse of f, which is denoted by f inverse, right. मीनिंग क्या हुआ,
अगर फंक्शन का इनवर्स आपको देखना है, इट मीन्स इट्स डोमेन बी ए कोडोमेन एंड कोडोमेन बी ए डोमेन, इंटरचेंज इट्स पोजिशन. नाउ we will come on our graph. Whenever we will get the value on pi by 2, sin x gives positive 1. Again we are getting here, that is 5 pi by 2. On we are getting value same 1. It means this sin x is not 1 1 function, it is a many one. Different values we are placing on the position of x, and the value of fx, or we can say the value of y, that we are getting, that is same. It means many of the domain having the single range, then it is known as many one function, right? तो sin x कौन सा हुआ? many one. अब on to की बात करें तो मीनिंग ऑफ on to, आपने कहा many one फंक्शन के टाइप्स की. अब अगर हम बात करें मैनी वन, फिर आप कह रहे हो एक 1 1, फिर आपने कहा ऑन टू, और आप कहते हो इन टू. देर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, मैनी वन, 1 1, ऑन टू, इन टू. मैनी वन मीनिंग इन द डोमेन देर आर मोर देन 2 domain, more than 2 values which are having the image that is single one, or we can say in a graphical representation more than 2 values. If we are getting the single range, then it is known as many one. Whenever one of the its domain from the value that is having one image 1:1, then it is to be known as 1 1. On to, whenever its codomain that is replaced by range, codomain is replaced by range, meaning कोडोमेन किससे रिप्लेस हो जाए? रेंज से. तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू. और वी कैन से कि ऑन टू में कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए? फ्री नहीं होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज इसके डोमेन में होनी चाहिए. Then we can say the function is on to. If it is not on to, then it is into. So we will describe here, the graph is sin x, we have described here. Now today we will discuss the inverse of sin function. तो sin function का inverse हमें calculate करना है, तो अब क्या करें? Now first we have know that the sin x is the function of many one into. So first we will describe its codomain. अगर हम sin inverse is the function that is fx, right? तो फिर इस f का इनवर्स का जो कोडोमेन है that is to be if its range, if its range. अब प्रॉब्लम क्या है? राइट, दोनों इंटरचेंज हो गए. -1 to 1 इज देयर एंड कैपिटल R इज देयर. क्लियर? तो साइन इनवर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इसकी रेंज आ रही थी दैट आर -1 to 1 sin x एंड डोमेन इज दैट इज कैपिटल R. तो हम डोमेन को तो क्या कर देते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं. कहां से कहां? डोमेन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड व्हेनेवर इनर्स इज टू बी डिस्क्राइब. तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा? -1 to 1. किसकी बात कर रहे हो? इनवर्स फंक्शन. डोमेन हो गया -1 to 1. और कोडोमेन क्या होगा? तो कोडोमेन इज द रेंज. लेकिन whenever these axis is to be rotate, this x values proceed on the y axis and this y values comes on the x axis in case of inverse function. तो इसका जो रेंज होगी, जो कोडोमेन होगा, वो क्या होगा? दैट इज -π/2 to π/2. अब देखो क्यों?
क्योंकि हमने क्या कहा, किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन एवर द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन क्या हो, 1 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 है तो पहली चीज होगा कि एवरी एलिमेंट हैविंग इट्स इमेज इनटू द कोडोमेन, राइट। और ऑन टू है तो कोडोमेन इज रिप्लेस्ड बाय रेंज, पर रेंज तो लॉन्ग रेंज है, that is having different values. So for onto we will restrict its interval into a certain limit, minus pi by 2 to pi by 2, suppose minus 3 pi by 2 to 3 pi by 2. So we will restrict it in its interval minus pi by 2 to pi by 2, in which it is 1 1, or we can say onto. कह सकते क्या कहा आपने, इसके कोडोमेन को आपने क्या कर लिया, एक सर्टेन इंटरवल में क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन दिया, इन दैट इंटरवल द फंक्शन बी ए ऑन टू, राइट। फिर कहा 1 1 होने के लिए एवरी एलिमेंट शुड बी हैविंग सिंगल इमेज, सो वेन एवर यू विल प्लेस बिटवीन दिस टू दिस वैल्यूज यू आर गेटिंग द सिंगल इमेज इन टू द इट्स कोडोमेन, देन इट इज 1 1 and the codomain is replaced by its range, then it is onto. So the sine inverse x, its domain is minus 1 to 1, its codomain is minus pi by 2 to pi by 2. Now every function is described in a manner like that, domain codomain. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इनवर्स हम अगर स्टडी करते हैं, इनवर्स क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका साइन एक्स इस टाइप का ग्राफ होगा। साइन इनवर्स का क्या होगा, ये ग्राफ रोटेट हो जाएगा, दिस ग्राफ इज टू बिकम ऑन वाई एक्सिस, एक्सिस टू बी सेम बट द वैल्यूज इज टू बी comes on the value which is the minus 1 to 1 on y axis, that comes on x axis, and the curvature would proceed on y axis between different values of degree angles or radian angles. So the f inverse is to be, तो मीनिंग साइन इनवर्स का अगर कर्वेचर भी आपको बनाना पड़ जाए तो क्या होगा, सेम ग्राफ है, राइट। ये एक्स एक्सिस ही है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ही है आपका, राइट। ये ओरिजिन है, ये वाई है माइनस वाई। अब कर्वेचर कैसा हो जाएगा, अब होगा इस तरीके से, फर्स्ट लाइक दैट, सेकंड सेम ये और ये, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल साइन इनवर्स x। तो यहां पर क्या डोमेन क्या रेस्ट्रिक्ट हो गया आपका, यहाँ -1 हो गया, यहाँ 1 के, इट मीन्स द डोमेन दैट इज टू बी रेस्ट्रिक्टेड। हमने क्या कर लिया, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया -1 से 1 के बिटवीन, और इसकी जो रेंज थी वो हमने क्या किया कि इसका जो रेंज है दैट इज द लॉन्ग पार्ट, बट इट शुड बी बाउंडेड इन ए सर्टेन इंटरवल, और वो सर्टेन इंटरवल क्या लिया आपने, that is taken positive pi by 2 and that is taken minus pi by 2, in which it is to be bounded. This interval is being considered for describing these trigonometric function of their inverse. अगर आपको इनका इनवर्स डिस्क्राइब करना है तो इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को क्या करना पड़ेगा, इन ए सर्टेन लिमिट यू हैव टू बाउंड इट, तो हमने बाउंड कर लिया। सो दिस बाउंडेशन इज टू बी रिप्रेजेंटेड हियर। नाउ वी विल डिस्क्राइब द डिफरेंट फंक्शन। फर्स्ट वी विल डिस्कस डोमेन एंड इट्स कोडोमेन। सो वी विल डिस्क्राइब हियर। ग्राफिक सबको क्लियर है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल साइन एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल साइन इनवर्स एक्स, राइट है। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल साइन एक्स का, और ये ग्राफ किसका है, y इक्वल साइन इनवर्स x का। अगर दोनों को हम देखें तो ये y इक्वल x के करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज डेवलप होती है। व्हेनेवर साइन x and sin inverse x both of them is to be included in a single graph, अगर दोनों को एक ही ग्राफ में इंक्लूड कर लिया जाए then they will be look like as a mirror image corresponding to the y equal x,
कि ग्राफिक्स y इक्वल एक्स क्या होगा, दैट इज द वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू द क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सिमेट्रिक होगा अपसाइड एंड डाउन साइड, मिरर इमेज। नाउ कम ऑन डिफरेंट फंक्शंस। अब आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स आपसे पूछा जाता है तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट द फंक्शन शुड बी 1 1 and 2। 1 1 and 2 होने के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इफ देयर इनवर्स शुड बी एग्जिस्ट देन इट शुड बी बाउंडेड, इट्स डोमेन इज टू बी रिप्लेस्ड बाय इट्स रेंज एंड द इट्स कोडोमेन इज रिप्लेस्ड बाय इट्स रेंज एंड डोमेन शुड बी बाउंडेड, राइट। नाउ we will write here different function, the fx is sin inverse x। तो इसका क्या डोमेन होगा, the domain that is -1 to 1 and its range that is described from, or that is the part of range, range is close -π/2 to π/2, that is for sin inverse x। whenever fx is cos inverse x, right, तो क्या डोमेन होगा, -1 to 1 सेम, राइट है, और यहाँ कर दो क्लोज 0 to π, राइट। whenever fx is tan inverse x, अब इस कर्वेचर को ऑब्जर्व करते हो तो डाउन साइड देयर में भी साइन ओवर कोस, it means whenever cos x is 0 the tan does not exist, function tan x will not be exist। तो cos x equal 0, in class 11th we have discussed sin x equal 0 which implies x equal n pi for every n belongs to z, right। cos x equal 0 which implies x equal to n plus 1 π/2 for every n belongs to z। There are two conditions we have discussed in trigonometry class 11। sin x is 0 कब होता है, जब x n pi होता है, और n किस में बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर में। ऐसे cos x कब 0 होता है, whenever x is the 2n plus 1 π/2 meaning odd multiple of π/2, this is to be the meaning of odd multiple, और n किस में बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर में। तो ये कंडीशन आपको यहां फॉलो करनी है कि tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x मीनिंग दिस इज टू बी डिस्क्राइब व्हेनेवर tan x इज टू बी एक्सप्लेन sin x ओवर cos x, इट मींस व्हेनेवर cos x इज 0, whenever cos x is 0 then tan x does not exist, so we will remove the values where cos x be 0 from its domain, राइट। क्या होगा फिर tan में अब डोमेन, तो tan इनवर्स x we will describe its domain that is r minus curly bracket x equal x such that x equal 2n plus 1 π/2, right, और n belongs to z, that is the डोमेन। कहाँ, अब कहाँ पे जाएगी इसकी इमेज, ओपन -π/2 टू π/2, 10 में -π/2 to π/2 it gives infinite, so that is to be open bracket। now for fx equal suppose cot inverse x, cot क्या हुआ, cos ओवर sin, तो sin कहाँ 0 होता है, n पाई पे, तो कैपिटल R से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, r माइनस n x इक्वल सच दैट x इक्वल n पाई n बिलोंग्स टू z। ये कहाँ होगा, डिफाइन कोट इनवर्स x 0 to पाई, राइट, कोट इनवर्स x 0 to पाई। Again we will discuss fx equal sec inverse x, ये कहाँ से का डिफाइन 1 cos, तो cos meaning wherever cos is 0 that is on this, that will be subtracted from it। now we will describe sec inverse that is r minus
-1 to 1. Now this is to be implied 0 to pi minus of curly pi by 2, राइट है. cos pi by 2 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है. so that should be subtracted from its values. now fx equal cosec inverse x. यहां पर 1/sin तो क्या होगा 0 r माइनस ब्रैकेट -1 to 1, right. now we will write close minus pi by 2 to pi by 2 minus of curly 0. this is the description of inverse function. तो ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, डोमेन क्या होंगे और इसकी रेंज क्या होगी, राइट है. ये आपकी बुक्स में टेबल फॉर्म में गिवन है आपको, वहाँ से आप इस टेबल को प्रॉपरली देख भी लेंगे और एक बार हम मिला चेक कर लें वेदर द गिवन साइन इनवर्स -1 to 1 pi by 2 क्लोज -1 क्लोज 0 to pi क्लोज अगेन -1 to 1, राइट. tan इनवर्स cot इनवर्स दैट इज r से वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, -pi by 2 to pi by 2 राइट कर लिया आपने, ठीक है. अगेन cot इनवर्स 0 to pi. अब आपको स्ट्रिक्टली ध्यान क्या रखना है, दिस रेंज शुड बी अंडर कंसिडरेशन, दिस रेंज शुड बी टेकन अंडर कंसिडरेशन. ये ध्यान रखना है आपको. 0 to pi दिस इज एंड दिस इज ऑल्सो sec इनवर्स, तो 0 to pi क्लोज -pi by 2. तो ये स्टूडेंट्स सबसे पहले ध्यान रखना है कि इनवर्स फंक्शन को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें उसकी रेंज एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए. दिस फॉर साइन इनवर्स, cos इनवर्स रेंज इज दिस, tan इनवर्स रेंज इज दिस, cot इनवर्स रेंज इज 0 to pi and sec inverse 0 to pi minus of pi by 2. This curly bracket means only pi by 2 is to be not taken as the range of the sec inverse x. Same with the cosec inverse x. From this interval only 0 is to be not taken. This is to be removed from the interval. राइट है. अब क्या करना है देखो, दिस रेंज, इस रेंज में जो आप फंक्शन का आंसर देंगे दैट इज द दिस रेंज इज टू बी नोन एज प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू. इसमें जो आंसर आप देंगे क्वेश्चन का, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ आंसर, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यूज एंड देयर इज जनरल वैल्यूज. तो यहाँ तो आपको प्रिंसिपल वैल्यूज पूछी जाती है, तो आपको इस रेंज से आंसर देना है, दैट इज टू बी नोन एज प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, राइट. क्या करना है आपसे क्वेश्चन में, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको यहाँ प्रॉपरली सॉल्व करते हैं. देखो, वन ऑफ द एग्जांपल दैट विल कंसिडर हियर, देयर इज गिवन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2. ये क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2. तो सबसे पहले whenever the question is to be like that, then you will have to start like that. Let it be equivalent to the theta. Sin inverse let equivalent to the theta. अब क्या करेंगे, this sin inverse is to be taken into the right side, it will be written like that, or we can say sin theta equal 1/√2, राइट है. अब आपको क्या करना है, देखो थोड़ा सा वर्क आ गया, अब हमें करना क्या है, ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आपको इससे देखनी है, रेंज से. रेस्ट पार्ट आपको प्रॉपर नॉलेज में रखना है कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, tan इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, और कोट इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, और कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्या होगा. तो स्टूडेंट्स आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है कि हमें जब कोई क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू का आपके पास आता है तो लेट इट बी इक्विवेलेंट टू द थीटा, और वी विल बी
whenever there is to be sine inverse, we can write in form of like that, sine theta equal 1 upon root 2. Inverse is there, then opposite side it should be written as a function. So this is to be right same. Now the work will start. अब वर्क को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. और मोस्टली आपको 2 डिफरेंट वैल्यूज मीनिंग है, इन दोनों की रेंज तो हमेशा ध्यान रखनी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन रूट 2. तो 1 अपॉन रूट 2 गिव्स ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा ऑफ साइन, दैट गिव्स कम ऑन क्वाड्रेंट. I think every student is to be know about the quadrant. This is the quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. In quadrant which trigonometric functions are positive? All positive. There is sine theta and cosec theta. They are, both of them are positive. In that tan theta and cot theta, they are positive. In that cos theta and sec theta, they are positive. Right? There are all trigonometric function are positive. There is only 2 function, that is sine theta and cosec theta are positive. In quadrant 3rd there is 2 function, that is tan theta and cos theta are positive. In quadrant 4th there are cos theta and sec theta, they are positive. Or we can say this is to be written in an abbreviation, that is ASTC rule, right? Now sin theta, whether the value is positive or negative, this is positive. So positive values to be taken into the quadrant 1 or in quadrant 2 for sin theta, right? This is to be quadrant 1, this is quadrant 2. There are 2 values of theta we are getting on this positive sign. 1 upon root 2 gives on theta, that is pi by 4, and there is a pi by 4 and there is pi. So this will be taken pi minus pi by 4. Second angle is pi minus pi by 4, right? Every student is clear in their mind which angle is to be taken sine, then it gives the 1 upon root 2 value in positive. Then we will have to go through the quadrant 1, quadrant 2. We know that 1 upon root 2 gives sin theta on theta equal pi by 4. In quadrant 2nd it should be written like pi minus pi by 4, right? कितने हो गए theta? There are 2 theta, pi by 4, and that is to be on simplification we will write 3 pi upon 4. There are 2 theta, right? अब क्या करना है आपको, अब आपको देखना है कि इन आउट ऑफ दीज 2 वैल्यूज विच ऑफ द वैल्यूज टू बी वेरी इन दिस इंटरवल. दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2. तो विच इज टू बी वैरिड? 3 pi by 4, that is not pi by 2 to pi by 2. There is and there is. If the value into the negative, that is existing, or the value of the quadrant 1, that will be exist. So exactly answer is pi by 4, that belongs to minus pi by 2 to pi by 2. So the pi by 4 is principal value of sine inverse 1 upon root 2. Exact it. Every student is clear this question in their mind. Principal value क्या हुई? pi upon 4. एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो. In next class we will solve the problems. Today we will describe the theoretical part of the inverse function, and 1 or 2 questions is to be based on it. One of the question, find the principal value of cot inverse 1 upon root 3. Principal value of cot inverse 1 upon root 3. In minus? Yes, there is a minus. So at first क्या करना है? Let it be equivalent to the theta,
write it. Now step 2, it is written like that. और स्टेप 3 आप करना चाहें तो और करके लिखेंगे, क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा इक्वल -1/√3। यहां तक का पार्ट सबको क्लियर। अब कॉट की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू रेंज आपको क्लियर होनी चाहिए। रेंज क्या थी कॉट थीटा के लिए, कॉट इनवर्स एक्स की रेंज थी, द रेंज इज 0 to पाई ओपन, यही थी। तो कॉट थीटा इक्वल -1/√3। नाउ वी विल फर्स्ट एग्जामिन द कॉट थीटा गिव्स द वैल्यू 1/√3 ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। कहाँ देता है, राइट? तो टेन थीटा 1/√3 कहाँ देता है अपने को, 30 डिग्री। तो कोट कहाँ देगा, ऑन 60 डिग्री। तो थीटा आपका क्या हो गया, दैट इज π/3। पहला पार्ट आपने कर लिया कि थीटा जो होगा वो π/3 होगा, बट द कॉट इज निगेटिव। तो कहां जाना है हमें अब, वी विल गो ऑन क्वाड्रेंट। कॉट थीटा निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यहां आपने कहा ऑल पॉजिटिव, यहां का साइन कॉस सेक पॉजिटिव, यहाँ का टेन कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव। यहाँ आ रहा है कॉट इज इन निगेटिव। कॉट नेगेटिव कहाँ है, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव। देयर आर 2 क्वाड्रेंट्स वेयर द कॉट थीटा इज निगेटिव। इस क्वाड्रेंट की बात करें तो दिस विल रिटर्न 2π माइनस ऑफ π/3। So on solving we are getting 5π/3। और इस क्वाड्रेंट की बात करें तो पाई माइनस π/3 विच इज इक्वल टू द 2π/3। देर आर 2 प्रिंसिपल वैल्यू, 2 वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर कॉट थीटा इज नेगेटिव, राइट है। तो अब हमें क्या देखना है कि कॉट की जो रेंज है इनवर्स की, दैट इज 0 to π। इस 0 to π में आंसर कौन सा आएगा, दिस इज द आंसर विच बिलोंग्स इनटू द π/3 is the principal value which belongs to the open 0 to π. So the principal value of cot inverse -1/√3 is π/3. Exactly clear this question, 2π/3, 2π/3। सबको क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले लेट इट बी इक्वलेंट टू द थीटा। नाउ वी विल राइट इन फॉर्म ऑफ लाइक दैट। फिर आपको देखना है कि दिस वैल्यू गिव्स कॉट ऑन द पर्टिकुलर एंगल, तो वो एंगल आपने कहा ऑन π/3 इट गिव्स दिस वैल्यू। नाउ वी विल गो थ्रू the quadrant on behalf of this sign. Cot will be negative in the quadrant second and quadrant 4. In second this angle is to be written π minus π/3. In fourth it should be written 2π minus π/3. So on simplification it will be written 2π/3, it should be written 5π/3. Now out of these two angle we will that the cot inverse its range that should be belongs into the open interval 0 to π. So in which values to be exist. So on behalf of this value is to be exist in the interval this. So this is the principal value of the cot inverse -1/√3. तो स्टूडेंट्स आपको अभी इस इनवर्स में अपने सबसे पहले इनकी डोमेन रेंज की टेबल को प्रॉपरली राइट करना है। Thereafter you should learn it in a proper manner. Now thereafter you just go through with an example of your book. केवल examples करें क्योंकि second class में we will discuss the different questions according to the pattern. Thank you very much.